آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بدترین سیلاب، ملک میں موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان، وفاقی وزیر احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ سیلاب نے پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تباہی مچائی، اب سیلاب سندھ میں داخل ہو رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا شہید میجر عدنان کو زبردست خراج عقیدت، کہا افواج پاکستان کی قربانیوں کی بدولت ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ خدا کرے کہ سندھ میں اس کے نقصانات کم ہوں، لیکن بہرحال یہ سیلاب ہے تو اس سے جو اس کی تباہ کاری جو ہے، اس سے جو نقصانات، جو انسانی جانیں جو اللہ کو پیاری ہو گئیں، زخمی ہوئے، اور اب جو اقتصادی نقصانات جو ہیں، اس حوالے سے آج کابینہ مشاورت کے بعد کلائمیٹ ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی اس کا اعلان کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہم کر رہے ہیں۔ قومی بیانیے کی تشکیل کے لیے قومی پیغام امن کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی کمیٹی برائے تشکیل بیانیے کی ذیلی کمیٹی ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ قومی پیغام امن کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ چیئرمین علماء پاکستان کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کمیٹی کے کوآرڈینیٹر ہوں گے۔ وزارت اطلاعات ڈی جی انٹرنل پبلسٹی ونگ بطور سیکریٹری خدمات سر انجام دیں گے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیا سمجھتے ہیں قومی پیغام امن کمیٹی کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، کتنا ضروری ہے قومی بیانیے کو تشکیل دینا؟ کیا ذمہ داریاں اس کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اس طرف لوٹے جو ہماری اساس تھی، ایک اعتدال پسند معاشرہ، ایک امن والا، سلامتی والا، محبت والا، جس میں تمام لوگ اپنے اپنے مذہب اور مسلک پہ رہتے ہوئے زندگی گزار سکیں۔ پاکستان مختلف مسالک اور مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، اور اپنے مسلک اور اپنے عقیدے اور اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے دوسروں کے عقائد کا، مقدسات کا احترام کرنا، اور مذہب کی بنیاد پر کسی بھی شخص کو مطعون قرار دے دینا، یہ کسی بھی حالت میں قابل قبول کسی بھی معاشرے میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام کی حقیقی تعلیم سے آگاہ کریں کہ ہمارا معاشرہ ایک اعتدال کی طرف جائے، عدم برداشت کا خاتمہ ہو، تاکہ یہاں پر جو ہے یہ جو ہر وقت خواب و سیاسیت میں برداشت ہے، مذہبیت میں برداشت ہے، خوف کی کیفیت جو رہتی ہے وہ ختم ہو سکے۔ تو اس کمیٹی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستان کے علماء، مشائخ کو، اسکالرز کو، سیاسی مذہبی قائدین کو اس میں ہماری رہنمائی کرنی چاہیے، اور ایک ایسا متفقہ بیانیہ، ایک ایسی متفقہ منزل جو اعتدال کی ہے، جو عدم برداشت کے خاتمے کی ہے، جو پاکستان کو ہر اعتبار سے مضبوط اور مستحکم کرنے کی ہے۔ آج ہمارے ارد گرد کے حالات ہمارے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دفاعی طور پر جس طرح مضبوط بنایا ہے، اس طرح ہمیں اپنے اندرونی جو استحکام ہے اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ جو معاشرے کے اندر ایک عدم برداشت ہے، یا خود ہی مدعی، خود ہی منصف، خود ہی جو ہے وہ جلاد والا سوچ اور فکر ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اگر جو اس کمیٹی سے منسلک وزارتیں ہیں، ادارے ہیں، حکومت کی جو کوششیں ہیں، اگر اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کیا گیا اور ایک مشن کے تحت، میں سمجھتا ہوں یہ ایک عبادت ہوگی اگر ہم پاکستانی معاشرے کو واپس اس طرف لے جائیں جو ایک امن اور اعتدال والا معاشرہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کراچی میں بارش کے بعد لٹ اور تھڈو ڈیم اوور فلو، لیاری اور ملیر ندی میں طغیانی، پانی آبادیوں میں داخل، جام گوٹ ملیر کے مقام پر شاہراہ بھٹو کا کچھ حصہ ریلے میں بہہ گیا۔ ڈیم کا پانی سپر ہائی وے کے اوپر سے گزر کر نجی سوسائٹیز میں داخل۔ کراچی میں طوفانی بارش، شہر پانی پانی ہو گیا، ندیاں بکھر گئیں، پانی کے بے قابو ریلے گھروں میں داخل۔ موسلادھار بارشوں اور تھڈو ڈیم اوور فلو ہونے سے آنے والا سیلابی پانی شہر میں تباہی کا باعث بنا۔
गडाप नदी में हाई रूफ गिरने के वाक़े में लापता होने वाले 4 अफराद में से खातून और मर्द की लाशें निकाली गयी। मलीर व लियारी नदी में शदीद तुग़यानी आ गई, जिससे मुतसिल इलाकों के कई मकानात गिर गए, जबकि गाड़ियाँ पानी में डूब गयीं। पानी के रेले घरों में भी दाखिल हो गए। आज तक हमने ऐसा रेला नहीं देखा, लेकिन गलती ये है कि रात को अंधेरे में इन लोगों ने पानी इस तरह छोड़ा है, अचानक आधे घंटे में पूरा कॉलोनी डूब गया है। पाक फौज ने इंतजामिया के साथ मिलकर मोटरवे और सादी टाउन में फंसे सैकड़ों शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके निकासी आप के कामों का जायजा लिया। शहर में नशीबी मकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। सादी टाउन समेत स्कीम 33 की मुख्तलिफ सोसाइटीज में पानी दाखिल हो गया। जामगोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो का कुछ हिस्सा सैलाबी रेले में बह गया। शाहराह भुट्टो मुकम्मल तौर पर बहाल है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त दोनों तरफ जारी है। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 136 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे भी शहर में वक्फे से बारिश का इम्कान है। उधर शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की आंख मशोली का सिलसिला जारी है। साथी रिपोर्टर काशिफ हुसैन के साथ साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में बारिश के लिए पूरी तैयारी की हुई थी। बारिश से 4 अमवात हुई, सूरत हाल काबू में है। सिंध के मुख्तलिफ इलाके सैलाब की जद में हैं। सैलाब की तबाहकारियों पर बैरूनी इमदाद के लिए कोशिश करेंगे। फ्लड आ रहा है, तैयारी हमारी पूरी तरीके से हुई है। हमने हेल्थ कैंप्स लगाए थे। हेल्थ कैंप्स में जो मेरे पास लास्ट थे 55,000 से ऊपर लोग आ चुके हैं। हुकूमत की तरफ से, हुकूमत अपने जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, मेट डिपार्टमेंट की तरफ से आती है, एनडीएमए की तरफ से आती है, पीडीएमए की तरफ से आती है, उन सब का जायजा लेके हिदायत जारी करते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको शाबाश देता हूँ, मीडिया वालों को शाबाश देता हूँ जिन्होंने अवाम को वक्तन फवक्तन आगाह रखा। एक कंबाइंड एफर्ट था जिसकी वजह से एक बेहतर तरीके से हमने इसको टैकल किया है। कराची में जामगोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो का कुछ हिस्सा सैलाबी रैले में बह गया। इलाका मकीनों का कहना है मलीर नदी के अंदर शाहराह भुट्टो की तामीर से पानी के बहने का रास्ता सुकड़ गया है। मजीद जानते एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे साजिद रऊफ से। जी साजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मलीर मेमन गोट जाम गोट में मौजूद हैं, जहां पर मलीर नदी पर तामीर होने वाली नई शाहराह भुट्टो को सैलाबी रेला काटता हुआ एक जानिब से दूसरी जानिब निकल गया है, जिसके बाद शाहराह भुट्टो पर कई फीट गहरा जो है वो शगाफ पड़ चुका है, जो कि मेरे अकब में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इंतहाई खतरनाक ये इस वक्त सूरत हाल है यहाँ की। इलाका मकीनों के मुताबिक रात तकरीबन 2 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया था। इलाका मकीनों का कहना है कि अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई और उसके बाद शाहराह भुट्टो जो हाल ही में इस वक्त तामीराती मराहिल से गुजर रही है, उसका में जो है वो बड़ा कई फीट गहरा जो है वो शगाफ पड़ गया है। और आप देख सकते हैं कि पानी का जो रेला है, यानी मलीर नदी से जो गुजरने वाला रेला है, वो बड़ी तेजी से यहाँ से गुजर रहा है। लोगों को ये भी कहना था कि यहाँ पर जो है वो कुदरती जो है नेचर जो थी उसको भी यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन नहीं की गई, जिसकी बाइस से जब नेचर को आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं। साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। सियालकोट में बरसाती नाला सैम पर बनाया गया आरजी पुल टूट गया। 85 देहात का सियालकोट शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। ओवरलोड ईंटों की ट्रॉली गुजरने से दोबारा आरसी पुल टूटा। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। नाला सेम का पुल टूटने के बाद आरसी पुल बनाया गया था। सियालकोट में बरसाती नाले सेम पर बनाया गया आरसी पुल टूट गया और 85 देहात का सियालकोट शहर से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। ओवरलोड ईंटों की ट्रॉली गुजरने से दोबारा आरसी पुल टूटा। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जलालपुर पीरवाला पहुंच गई हैं। मरियम नवाज का रिलीफ कैंप का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम किया। मरियम नवाज का जलालपुर पीरवाला और मुल्तान का फ़ज़ाए जायजा। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासर इलाकों का भी मुशाहिदा। मरियम नवाज का रिलीफ कैंप का दौरा और मुतासरीन से उन्होंने मुलाकात भी की है और वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन में खाना भी तकसीम किया है। जलालपुर पीरवाला में उन्होंने रिलीफ कैंप का दौरा किया है और वज़ीर आला मरियम नवाज ने जलालपुर पीरवाला
और मुल्तान का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया है। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासर इलाकों का मुशाहिदा भी किया गया है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जलालपुर पीरवाला का दौरा किया है और उन्होंने रिलीफ कैंप का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन में खाना भी तकसीम किया। मरियम नवाज़ का जलालपुर पीरवाला और मुल्तान का फ़ज़ाई जायज़ा। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासर इलाकों का मुशाहिदा भी किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में मोरिया लूप बंद का दौरा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सैलाबी सूरत-ए-हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में मोरिया लूप बंद का दौरा और बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सैलाबी सूरत-ए-हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में मोरिया लूप बंद का दौरा। दरियाए सिंध के बैराजेस पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। सैलाबी पानी बढ़ने से हिफाजती बंदों पर पानी का शदीद दबाव है। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे ब्यूरो चीफ शहजाद ताबानी से। जी शहजाद ताबानी, बताइएगा। देखिए, दरियाए सिंध के तीनों बैराजेस के ऊपर पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। गुड्डू बैराज पर अगर हम बात करें तो 5 लाख क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया, यानी कि 24 घंटों के दौरान 50,000 क्यूसिक पानी जो है गुड्डू बैराज पर इजाफा हुआ है। सखर बैराज की अगर हम बात करें तो सखर बैराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर भी तकरीबन 45 से 50,000 क्यूसिक पानी का जो है 24 घंटों के दौरान इजाफा हुआ है। कोटरी बैराज पर जो है वो 3 लाख क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया है। वहाँ पर भी जो है पानी इसी तरीके से जो है बुलंद हो रहा है। कंट्रोल रूम सखर बैराज के मुताबिक पानी जो है वो मजीद अभी आना है, पानी मजीद अभी और आएगा। ऐसा जो है बैराजेस के ऊपर पानी बढ़ रहा है। उसके हिसाब से जो इंतजामात हैं वो भी मुकम्मल किए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कल खुद जो है वो सखर में थे। उसके अलावा सिंध हुकूमत के जो वज़रा हैं, वज़ीर आला सिंध खुद जो है वो मुख्तलिफ बंदों के ऊपर जो है वो विजिट कर रहे हैं और जो है इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। सबसे बड़ा मसला हुकूमत के लिए जो था कि कच्चे के लोगों को पक्के की तरफ किस तरीके से मुंतकिल करना है, तो वो उसमें जो है किसी हद तक कामयाब नज़र आ रही है। बड़ी तादाद में लोग जो है वो महफूज मकामात तक आ गए हैं। पानी अभी मजीद आ रहा है। 5 लाख क्यूसिक पानी हो गया है। इस वजह से बंदों पर जो दबाव है वो दबाव जो है वो शदीद है। इस वक्त दरिया सिंध के जो बंद हैं उन पर मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें दादू कैनाल की तो वहाँ पर भी जो है शगाफ पड़ने की वजह से काफ़ी देहात जो है वो ज़ेरे आब आ। ठीक है, ब्यूरो चीफ सखर शहजाद ताबानी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। और अब खबर खेल के मैदान से। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को मोहसिन नकवी और सलमान अली आगा से हाथ मिलाने पर गद्दार करार दे दिया गया है। दुबई में न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से नीम दिली के साथ हाथ मिलाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तकरीब में वज़ीर दाखिला और ACC के सदर मोहसिन नकवी के साथ भी सूर्य कुमार यादव को हाथ मिलाते देखा गया। इस पर एक भारतीय सारिफ ने लिखा, भारतीय कप्तान का पाकिस्तान के विफाकी वज़ीर दाखिला से हाथ मिलाना बाइस शर्मिंदगी है। सलमान आगा से हाथ मिलाने पर एक सारिफ ने लिखा, ये गद्दारी कभी माफ नहीं करेंगे। एक और सारिफ ने लिखा, ये शर्मनाक है।